बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेकंड वीडियो। जिस तरह की हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स की, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ रह गई हैं, तो जिस तरह के हमने देखा था कि हमारे पास पॉलिसीज़ 4 हैं एंड प्रिंसिपल्स they are 10 that are mentioned in our course, and we covered 6 principles in our last video. So let's continue the principles, and we will be going to discuss today. So let's start. The first one is materiality. तो बेसिकली materiality है क्या? Any information is material if the omission or misstatement. By misstatement we mean that if amount is misstated या गलत लिखी गई है, that does not depicts the true amount, then it can influence the economic decisions of the users of the financial information of the reporting entity. तो आसान अल्फाज में ऐसी कोई भी अमाउंट मटेरियल कहेंगे हम उसे कि अगर उस अमाउंट को ना लिखना या उसे गलत लिखने से हमारे डिसीजंस चेंज हो सकते हैं. And secondly, the amount which is not material, that will be called immaterial amount, and in simple words we can say that it is an error that is too trivial to affect the user's understanding. तो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ लिया materiality, amount is material और immaterial. If it changes the decisions then it is material, and if it does not then it is immaterial. So there is no basically a set rule of or concepts or a threshold for a materiality of the amount, but it can be classified as material or immaterial on the basis of two things. Number one is the nature, and number two is the magnitude. So let's talk about the nature. Uh, in some cases, it is the legal obligation of some entities to disclose specific kinds of transactions, and omission is always material. For example, we can say that directors remuneration or salary, and secondly related party transactions. Related party transactions से हमारा मतलब है any transactions with close friends, family or relatives. This is a standard, and you will study this in detail in your higher studies. Magnitude की basis पे we can say due to its size, comparable to other items. इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि if you have 100 rupees and you have lost 10 rupees, so we can say that it is 10% for you, and it might uh, change your mind, yeah, it might affect you losing those 10 rupees. But if there is a person and he has 1000 rupees, or say let's say 10,000 rupees, so that 10% really doesn't matter for him. तो ये चीज हमारे लिए मैग्नीट्यूड के बेसिस पे आएगी. तो हमने यहाँ पे डिस्कस की मटेरियलिटी. The second concept we are going to discuss is
money measurement. So basically, what is money measurement? Money measurement, we can say that businesses only record a transaction if it is expressed in terms of money. यानी बिजनेस का बेसिकली काम होता है प्रॉफिट कमाना, और जहां पे हमारे पास पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा उस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो इन अकाउंटिंग वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली दोज थिंग्स which involve money. And we can say that the main focus of accounting transactions is quantitative and not qualitative. For example, we can say that employee skill set or working conditions or the durability of the product. So they are not going to be recorded in the financial statements. Uh, they can be included in any report, but not in the financial transactions. The second last uh, principle that is measured in our course is historical cost. So basically, what is historical cost? Uh, Historical cost concept says that all assets must be recorded at cash value on the date they were acquired. Yeah, on date of acquisition. In other words, we can say that amount that was actually paid for the asset. So when we are basically यहाँ पे हमारे पास एक और concept आ जाता है current cost. For example, I bought asset at rupees 100 and when I sold it, it was 150. So in my statements, the asset will be recorded at 100, but the current cost is 150. There are methods when you can record on current cost. That is some detailed concepts. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है when I sell at it at 150, तो जो मेरा बायर होगा उस एसेट का उसके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट 150 होगी. तो यहाँ से इस तरीके से ये नहीं हम कहेंगे कि जो उसके ओरिजिनल बायर ने खरीदा था, तो अगर सब्सिक्वेंट बायर है वो भी उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा. सब्सिक्वेंट बायर के लिए करंट कॉस्ट उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी. The last concept we are going to discuss today is realization. Basically, realization concept हमें कहता क्या है? Realization concept हमें कहता है कि revenue cannot be recognized when the services or goods are not actually delivered, या when the transaction has actually not executed. तो revenue को हम recognize सिर्फ उस केस में करेंगे when the transaction is actually executed. यानी actual टेक ओवर या हैंड ओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर एक्चुअली रेंडर्ड, सिर्फ उस केस में हम लोग अपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे एंड वील से दैट वी हैड रिकग्नाइज्ड एनी रेवेन्यू. तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर मिस किया तो इफ यू हैव सीन दैट प्रीवियस लेक्चर, इफ यू हैवंट सीन इट यू कैन सी इट. तो उसमें हमने एक दो चीज़ें डिस्कस की थी, प्री पेमेंट्स, accruals, एंड सेकेंडली हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था विच वाज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो ये हमारे पास इसमें से इन तीनों से भी लिंक बन जाता है कि
In case there are any advance payments or any delayed payments. इस केस में हमारे पास अगर देखा जाए, इफ देयर आर एनी एडवांस पेमेंट्स एंड वी हैव नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड द गुड्स और द सर्विसेज, तो वो हमारे पास हो जाएंगी, प्री पेमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, यानी हमारे लिए वो हो जाएंगी प्री पेमेंट्स। हमने एडवांस में इनकम वसूल कर ली है लेकिन हमने एक्चुअली उनको अर्न नहीं किया। वी हैव रिसीव्ड इट बट दैट इज नॉट अर्नड, सो वी विल रियलाइज द रेवेन्यू। हम उसे सिर्फ तब अपना रेवेन्यू मानेंगे जब हम उसे अर्न कर लेंगे। तो ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल्स जो हमारे कोर्स में रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पॉलिसीज। अच्छा, तो सेकेंडली हमने पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स का डिफरेंस भी डिस्कस किया था। हमने काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें, व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस तरह की हमने कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो इफ़ यू हैवंट सीन दैट यू कैन सी दैट। एंड सेकेंडली, अगर कोई भी क्यूरीज हों तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल बी पर्सनली सीइंग देम। तो अब हम लोग मूव करते हैं पॉलिसीज पे। हमारे कोर्स में सिर्फ 4 पॉलिसीज हैं। अब हमारे पास जो पॉलिसीज हैं वो हैं क्या? द फर्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। तो व्हाट इज कंपेरेबिलिटी? कंपेरेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स, या इसके लिए एक आसान हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। यानी हम अपनी पॉलिसीज को, अपने अकाउंटिंग को जो रिकॉर्ड करना है उस तरीके को हम एक स्टैंडर्ड बना लें, सो दैट द स्टेटमेंट्स कैन बी कंपेयर्ड। अब कंपेयर्ड किस सेंस में? देयर कैन बी टू वेज, विद अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो हमारे पास एबट है, वो किसी और कंपनी के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकती है, बिकॉज दे आर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स एंड द सेम पॉलिसीज। तो ये हमारे पास एक है कि हम चीज़ों को कंपेरेबल बना सकते हैं। एंड सेकेंडली, सेम कंपनी, अब हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे? प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स, यानी हम अपनी परफॉर्मेंस को पिछले सालों से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पहली पॉलिसी जो कि कंपेरेबिलिटी है। तो ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं या तो इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के साथ या फिर अपनी ही कंपनी के साथ फॉर एनी अदर अकाउंटिंग पीरियड्स। अच्छा, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट, पॉलिसी, दैट इज रेलेवेंस। तो रेलेवेंस हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स कुछ ये कहते हैं कि information must be relevant. By relevant, we mean that it is capable of making a difference in decision making. By whom? By the users of financial statements. तो अगर हमारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, तो सेकेंडली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बाय वर्ड उनकी जो डिक्शनरी में मीनिंग्स हैं उनके साथ भी हमें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा एक अकाउंटिंग के साथ उसे हमने रिलेट करना है कि हमारी अकाउंटिंग से उसका क्या ताल्लुक बनता है। तो रेलेवेंस ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस बनाए। अच्छा, अब हमें कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट
if it can be used for two purposes. Number one, it can be used as a predictive value. Secondly, it can be used as a confirmatory value. अच्छा, तो अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि प्रिडिक्टिव वैल्यू और कंफर्मेटरी वैल्यू क्या है। तो ये हमें कुछ इनकी देख के ही समझ आ जाती है। प्रिडिक्टिव वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू विच कैन प्रिडिक्ट विच कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर या व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। यानी हम अपने पिछले रिकॉर्ड को देख के कहें कि हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करें, यानी हर साल हमारे पास बिजनेस में 10% इंक्रीज आ रहा है, सो वी कैन प्रिडिक्ट दैट इन द कमिंग ईयर देयर इज आल्सो गोइंग टू बी अ 10% इंक्रीज। तो ये हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रिडिक्टिव वैल्यू। Secondly, information is relevant if it is used as a confirmatory value. By confirmatory value, we mean that it confirms the predictions made in the past. So these two things are interrelated. A single piece of information is predictive value is predictive for 1 year and at the start of the year, and at the end of the year that same is the confirmatory value. फॉर एग्जाम्पल इस साल के एंड पे, यानी साल के एंड पे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई दैट इज प्रिडिक्टेबल वैल्यू फॉर द फ्यूचर एंड दैट इज ऑल्सो कंफर्मेटरी वैल्यू फॉर द पास्ट ईयर। तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। द थर्ड प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन रिलायबल किस तरह है? तो इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि अगर हम उसे बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी हेजिटेशन के यूज कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली, या दूसरे अल्फाज में विच कैन बी यूज्ड consistently by the creditors, by the investors. So yeah, we can say that this refers to trustworthiness. अच्छा, अब it has three attributes. तो अब इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर वन, वेरीफाइबिलिटी। नंबर टू, faithful representation, and number three, neutrality। यानी अगर इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल है फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज, यानी ऑडिटर भी उसे वेरीफाई कर रहा है, मैनेजमेंट भी वेरीफाई कर रही है, बाकी डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई हो रही है, तो दिस इज वन एट्रीब्यूट। सेकेंडली, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो चीज़ है हमें वही बताई गई, कोई झूठ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। एंड द थर्ड इज न्यूट्रलिटी, कि यानी वो विदाउट एनी बायसनेस, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स का एम होता है कि यार कंपनी को थोड़ा सा अच्छा शो कराएं ताकि बोनसेस मिलें, प्रॉफिट्स अच्छे शो हों, गुडविल बढ़े कंपनी की, तो उसमें वो लोग बायसनेस यूज कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, in that case information will be not reliable if financial statements are prepared without any biasness, so they are reliable। और हम ये भी कह सकते हैं कि तीन और एट्रीब्यूट्स, यानी दूसरे अल्फाज में दे आर द सेम बट सम अदर नेम्स, कंप्लीटनेस एंड मटेरियल। यानी अमाउंट सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो हम कहेंगे कि भाई
दिस इज रिलायबल इंफॉर्मेशन। जहाँ पे हमारे पास कोई ओमिशन है तो हमें वहीं वहीं से शक पड़ जाएगा कि यार ये इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है, या फिर अगर कोई अमाउंट मटेरियल आगे पीछे हुई हुई है तो फिर भी हमारी रिलायबिलिटी शक में जा सकती है। तो द लास्ट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू डिस्कस is understandability. तो बेसिकली अंडरस्टैंडेबिलिटी है क्या? अंडरस्टैंडेबिलिटी हमें ये कहता है कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है so that a person who don't have advanced knowledge can easily understand the information presented in the financial statement. So that can be done by classifying the information. Secondly, presenting the information in a clear manner. And secondly, and sorry, the third, concise. If the information is classified correctly, uh, it is mentioned clearly without any ambiguity in a vivid manner. And the third thing and the last, if it is concise. So it is easy for a person to understand who don't have an advanced knowledge. यानी एक आम बंदा एक बंदा है who is a simple we can say he is an engineer, so he will be an expert in his field but he might not know some advanced knowledge about accounting. तो जब अगर उसने एक कंपनी के शेयर्स लिए और वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है तो ही माइट नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स क्वाइट इन अ गुड वे। तो उसे समझाने के लिए हम आसान तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास चार पॉलिसीज भी पूरी हो गई, हमारे प्रिंसिपल्स भी पूरे हो गए। तो बाकी for the first video, I would like to thank for the good response, for the amazing response. And secondly, I would also like कि अगर आप लोग साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ अगर कोई questions हैं तो आप लोग कमेंट्स में काइंडली पूछ सकते हैं, that will be surely answered. uh, Inshallah, I looking forward to this third video which will be posted after a week. Thank you.